Good evening, each one of my lovely students. How are you people doing? I hope everyone's doing well and good. Yes, it's a very requested video, everyone. Metals and non-metals, the most awaited video for class 8th, and this is lecture 1. So please shower all the loves and blessings on this lecture so that I may upload next lecture also. Okay, it completely depends on your support. So please support as much as possible so that it motivates me also to post the next lecture. Okay, so this is the most awaited lecture, everyone. I know how much have you people desperately waiting for this video. I know it very well. So guys, let's begin. I hope you are doing well, and just yes. So, oops, close down my camera. It was a mistake. Anyway, yes, I am back. No worries. No, I'm not closing it now. But yes, now we should start with our positivity dosage, and we should quickly begin with the lecture as time is very precious. Time and tide wait for none. Okay, let's start. So this is our most awaited, the second slide, which is today's positivity capsule. As I would just a minute. It's a bit, yes, perfect, everyone. Am I visible to everyone, audible to everyone clearly? सब दिखाई सुनाई दे रहा है? So this person from whom I have got today's quote is one of my favorite personalities. He is not just my favorite, he is a national hero, undoubtedly, and he is somebody whom I admire and who inspire me each and every day to work harder than yesterday. So he is someone who is just an inspiration to me. He has just kept the fire in me burning, and because of him I am standing here, and I'm despite of many ups and downs in my life, I am still able to continue my work just because of him. He's one of the reasons, my parents being another reason for it. Okay, so he is none other than Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj, and today I'll get a quote from him for all of you, and it goes as follows. So just wait for a while, I may zoom it. Yes, like this. Okay, so he is this person and he is saying, okay, anyways, my camera has turned off and I want it to be like to have some space on my screen. Now I will recite that quote. It is, time itself changes for those determined to constantly work towards their goal even in the worst of times. So according to him, as I believe, time itself changes for those who are determined. समय उन लोगों के लिए भी बदल जाता है, बुरा से बुरा समय उन लोगों के लिए भी परिवर्तित हो जाता है जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने काम की तरफ, अपने गोल की तरफ अग्रसर होते हैं, जो सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान देते हैं. टाइम अच्छा हो, बुरा हो या कैसा भी हो, टाइम की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो पास हो जाता है. इवन इफ इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जस्ट कीप वर्किंग, ट्रस्ट ऑन योर गॉड, and he will never let you down. Something which inspires me every day is this person, and he says that समय उस मेहनती इंसान के लिए बदल जाता है जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ता. So my suggestion to each one of you here, all the audience, is कभी भी मेहनत करना मत छोड़िए, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए. चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय, पास हो जाता है और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा. So with this, I would love to start today's lecture. So how are you feeling, guys, everyone? Full of positivity? Full of josh? Let's begin. So we are going to begin the most awaited lecture. Let's begin. Okay, let's start.
So we'll start with classification. So classification का मतलब क्या होता है? To divide something into different classes. To divide something, किसी चीज़ को divide करना different sections में, ठीक है? Classify करना. तो किसने classify किया था? आपके metals और non metals को किसने classify किया? किसने अलग किया? Segregate किया? ये थे father of chemistry, Lavoisier. Okay? Lavoisier, he is called Lavoisier, he is the father of chemistry. This is your first and foremost important question. I can bet if you are attending this lecture very seriously along with a copy and a pen and are you making notes, then nothing will come out of it in any exam. Any school exams, any competitive exams for class 8th, nothing will come out of it. प्लीज़ अटेंड दिस लेक्चर एज सीरियसली एज यू कैन. ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है. लेवोसियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है. एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है, इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, इन्होंने ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है. आगे पढ़ेंगे. देखिए इनकी क्लासिफिकेशन क्या है. देखो ये कॉन्सेप्ट मैप जो है, ये जो आप कॉन्सेप्ट मैप देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, या तो इसका आप एक स्नैपशॉट ले लें, या तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज करें और अपनी नोटबुक में बना लें. प्लीज़, बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्लाइड है ये. ठीक है, सुनो. अब मैटर जो है, मैटर क्या है? मैटर सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब लोग. क्लैरिटी है ना इस कॉन्सेप्ट में सबको? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है. अब मैटर में दो चीज़ें आ सकती हैं बेटा. देखो, मैटर में दो चीज़ें आ सकती हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस मेरे साथ साथ याद भी करते जाओ. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही तरह की यूनिट्स का बना हो, जो एक ही तरह के यूनिट्स का बना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ. ठीक है, अगर चीनी है, अगर आपके पास घर में चीनी है, तो चीनी के डब्बे में क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ चीनी होती है. सिर्फ़ और सिर्फ चीनी, यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक यूनिट होना, एक यूनिट होना. ठीक है, एक ही चीज़ होना. नमक के डिब्बे में आपको सिर्फ नमक मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा. ठीक है, क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे आपने किसी भी चीज़ में अगर मिलावट नहीं करी है तो वो प्योर सब्सटेंस है. एक जनरल भाषा में जो भी सब्सटेंस किसी भी एक यूनिट का बना हुआ है, चीनी में सारे जो छोटे छोटे कण होंगे, सारे चीनी के कण होंगे. ठीक है, नमक में पूरा नमक होगा. ठीक है, समझ आ रहा है? ये बात समझ आ गई? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर्स. इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्सचर. ठीक है, जैसे कि आपकी फॉर एग्जाम्पल योर सॉइल. मिट्टी. मिट्टी सब लोग जानते हैं. मिट्टी क्या है? मिक्सचर है. डस्ट भी है, ह्यूमस भी है, सैंड भी है, थोड़ा सा क्ले भी है. ठीक है, तो मिट्टी क्या हुई? मिक्सचर हुई. समझ आया? सॉइल का कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं है बेटा. देखो, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्योर सब्सटेंसेस का एक सिंपल, एक फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है. अगर मैं चीनी बोलूँगी तो उसमें सारी की सारी चीनी ही होगी. ठीक है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर है, उसके साथ ऐसा नहीं है. मिक्सचर, अगर मैं सॉइल का बोलूँ, मिट्टी बोलूँ, तो मिट्टी में सारी चीज़ें आ जाएंगी. डस्ट भी आ जाएगा, ह्यूमस भी आ जाएगा. ठीक है, फिर उसमें कुछ अदर सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे, कुछ क्ले पार्टिकल्स आ जाएंगे. आया समझ? ठीक है, तो ये मिक्सचर है जिनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है. इस चीज़ को समझ लीजिए. 1 मिनट में इन क्लियर कर दूँ. ओ चलो कोई बात नहीं, आपने देख लिया था ना कॉन्सेप्ट मैप. ये सर्कल्स चले गए हैं जो मैंने बनाए थे. एनीवेज, ठीक है,
आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे सॉइल हो गया, जैसे सॉइल हो गया, जैसे एयर हो गई आपकी, ठीक है। देखो यार अब ये मैटर नहीं करता, ये सर्कल ही तो बने थे ना यहाँ पे, ऐसे मैंने सेग्रीगेट किया था, ठीक है। इसके दो पार्ट्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, ठीक है। अभी ये चली गई है इंक, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव टू अनडू अगेन। तो ये एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, ठीक है। इसको एक बार यार पीछे से जाके ना स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, और वैसे ही का वैसे ही कॉपी में बना लेना। तो सॉइल और एयर जो होती है, सॉइल और एयर जो होती है, एयर भी आपका मिक्सचर है, ठीक है। एयर भी आपका मिक्सचर है, सॉइल भी आपका मिक्सचर है। क्वेश्चन पूछेगा बेटा कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़, मैं तुमको एक और हिंट देती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फॉर्मूला ना लिख सकें, आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता है ना, O2, नाइट्रोजन का पता है ना, N2, क्या आप सॉइल का फॉर्मूला लिख सकते हैं? क्या आप सॉइल का फॉर्मूला लिख पाएंगे? क्या आप एयर का फॉर्मूला लिख पाएंगे? क्या आप मिल्क, दूध का फॉर्मूला लिख पाएंगे? बताइए मुझे, मिल्क का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? मिल्क का नहीं लिख सकते हो। तो जिस भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो वो बेटा मिक्सचर है, वो इम्प्योर है आपका, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो। जिसको फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है, फॉर्मूला बनाना, वो भी मैं सिखा दूंगी, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करो। जिस भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे वो मिक्सचर होता है। इतना डिटेल में आपको कहीं और समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ इधर ध्यान देना, ध्यान से सुनो, एक बार नहीं 2 बार चलेगा तो वीडियो आप देख लो, ओके, ठीक है। आया समझ? प्योर इम्प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया। अब मैं प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन पे चलती हूँ, ठीक है। देखो अब ये है ना, थोड़ा सा, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट। अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूंगी थोड़ा सा तो आपको क्लैरिटी होगी, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप जाके पीछे से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पीछे से आप जाके स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक रफ बना दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट पीछे से ले लेना यार अच्छे से, ठीक है। मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, so I'm not bothered about the beautiful slides, I'm bothered about your understanding, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो एलिमेंट्स के पार्ट्स हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। ये आपके एलिमेंट्स के पार्ट हैं। किसके पार्ट्स हैं? एलिमेंट्स के। प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या अंतर है। आपको प्योर इम्प्योर अच्छे से समझ में आया, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में अंतर समझिए, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आपका क्या अंतर है? जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ओके। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर बताती हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स देखो बेटा ऐसी चीज़ें जैसे कि गोल्ड, आपका गोल्ड का सिंबल है ना। गोल्ड में सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे, सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे। मैं गोल्ड बोलूँगी, AU है उसका सिंबल, ठीक है। गोल्ड बोलूँगी तो उस गोल्ड के उस ब्रिक में या उस पीस में सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे। सिल्वर बोलूँ तो सिल्वर के ही सारे एटम होंगे, ठीक है। कॉपर बोलूँगी तो कॉपर के सारे एटम होंगे। आया समझ? तो ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक ही तरह के एक एटम, जैसे कि मान लो ये सारे, देखो ये सारे एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से विजुअलाइज कराऊंगी, ओके। तो एलिमेंट्स के बारे में बस आप इतना समझ लो, एलिमेंट्स के बारे में बस आप इतना समझ लो कि अगर मैं गोल्ड बोलूँगी तो सिर्फ एक ही गोल्ड के यही वाले एटम, एक ही टाइप का एटम होता है। एटम आप समझते हो ना, मॉलिक्यूल से छोटी यूनिट क्या होती है? एटम। एटम जो होता है ना, एक ही तरीके के एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो एक एलिमेंट है,
ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है। ध्यान से समझ लो प्लीज़, इसको ध्यान से समझ लो। कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। अब मैं तुमको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ जो शायद तुमको पहले पता नहीं होगा। देखो इसको मैं इरेज कर रही हूँ तो ये सर्कल्स भी इरेज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो डोंट माइंड, आई एम नॉट माइंडिंग इट, यू ऑल्सो डोंट माइंड, ओके। पढ़ाई पे ध्यान दो बस, सुंदरता पे नहीं, ठीक है। देखो ये क्या है बताओ, ये ओ लिखा है मैंने, कोई भी ज़ीरो नहीं कहेगा, ठीक है। ये ओ लिखा है मैंने, बताओ ये क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? ऑक्सीजन, ओ, इतना सब लोग समझते ना, ओ ऑक्सीजन एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट है, ठीक। मैं जब O2 लिखूंगी तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब मैं ऐसा लिख दूंगी NO2 तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अंतर समझिए बेटा, एलिमेंट हमेशा सिंगुलर होता है, एलिमेंट हमेशा ओनली वन होता है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन के साथ कोई 2, 3 नहीं लगा है, सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, तो इसको आप एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ओके। फिर से मैं बोल रही हूँ बेटा, सिंगुलर लगा हुआ है, अगर सिर्फ एक है, एक ऑक्सीजन का एटम है ऐसे पड़ा हुआ अकेला, तो उसको एलिमेंट कहते हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्ड बना लेते, 2 ऑक्सीजन के एटम ऐसे अगर जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, साफ दिख रहा है कि नहीं, कि मैं इसको साफ करूं, तो साफ कर दूं। देखो इधर देखो, इधर देखो, 2 ऑक्सीजन के एटम अगर ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, समझ लो एक तार से, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जब 2 एटम आपस में, बेटा ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही होंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी कि एटॉमिसिटी क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अभी इधर वाली पहले बात समझ लो कि अगर 2 एटम हाथ मिला के एक दूसरे के साथ जोड़ा बना के चिपके हुए हैं तो उनको मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। और ये 2 एटम जो होंगे ये एक ही तरीके के होंगे। नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के साथ ही मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा, मेरी बात ध्यान से समझना। नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा। जब भी एक एलिमेंट को मॉलिक्यूल बनाना होता है तो वो अपने ही जैसे एक एलिमेंट के साथ जोड़ी बना के बैठते हैं, समझ में आया। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जोड़ी बना के बैठते हैं। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एलिमेंट समझ में आया सबको, अकेला रहा तो एलिमेंट, अपने जैसे के साथ जुड़ गया तो मॉलिक्यूल, और अपने जैसे से अलग जुड़ गया तो कंपाउंड। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। अकेला रहा तो एलिमेंट, अपने जैसे के साथ ज्वाइन कर लिया हैंड्स तो मॉलिक्यूल, और अपने से अलग किसी से हैंड शेक कर लिया, हाथ जोड़ के जोड़ी बना के बैठ गया तो वो कंपाउंड होता है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगी जो आप नहीं भूलने वाले हैं, फिर कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है, इसमें कोई भी अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा। प्लीज़ यार ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना सारा इसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इसको समझ लेना एकदम अच्छे से। हटा दूँ क्या मैं ये सर्कल्स, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। अब बोर्ड क्लियर हो गया, देखो एकदम आराम से, यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेट करो, कलर, ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, समझ लो ये तुम हो, ये तुम हो, क्लास में अकेले बैठे हो, क्लास में अकेले, पूरी क्लास में अकेले, अकेला बैठा हुआ कौन होता है, एलिमेंट। तो तुम अभी एलिमेंट हो। सपोज कर लो कि तुम्हारा एक ट्विन है, तुम्हारा एक जुड़वा भाई या बहन है, तुम्हारा एक ट्विन है, तुम और तुम्हारा ट्विन कैसा होता है, तुम्हारे ही जैसा होगा। तुम और तुम्हारा ट्विन हाथ मिला के, हाथ एक दूसरे से जोड़ के तब बैठे हो, तब तुम लोग क्या हुए, मॉलिक्यूल हुए, ठीक है।
अब मान लो तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम दोनों बैठे हो, तुम दोनों एक जैसे नहीं दिखते हो ना, बताओ तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, राइट? तो वेन एवर यू आर सिटिंग अलोन इन द क्लास यू आर एन एलिमेंट, भूलना नहीं इस चीज़ को। वेन एवर यू आर सिटिंग अलोन इन द क्लास यू आर एन एलिमेंट, यू आर सिटिंग विद योर ट्विन यू आर अ मॉलिक्यूल। इधर ध्यान दो सब कोई, बिल्कुल इधर। आप अगर अकेले बैठे हो क्लास में तो आप क्या हो? एलिमेंट। अगर आप अपने ट्विन के साथ हाथ ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हो, हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठे हो, तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल। और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हो, अपने बेस्टी के साथ बैठे हो, क्या हो जाएगा? कंपाउंड। आपका बेस्टी आपके जैसा नहीं दिखता ना, ऑक्सीजन का बेस्टी नाइट्रोजन है, उसके साथ उसके जैसा नहीं दिखता। कार्बन है, कार्बन दिखता है क्या उसके जैसा? नहीं, ये सी है, ये ओ है। मेरी बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अकेले बैठे हो तो एलिमेंट, ट्विन के साथ बैठे हो तो मॉलिक्यूल, अलग अपने बेस्टी के साथ बैठे हो तो कंपाउंड। आया समझ में? चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ यार। एलिमेंट्स, कंपाउंड समझ में आ गया। सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, देखो बेटा अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। प्योर सब्सटेंस, मैटर तो हो ही क्या था, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स डिस्कस कर लिया है। अब देखो एलिमेंट्स के ही पार्ट्स हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैस, जिनके बारे में हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं यार, इतना तो समझ ही आ रहा होगा। ठीक है, अब हम डिटेल में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैसेस के बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़ें आगे। ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। सबको समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी क्लैरिटी से पढ़ा था पहले कभी? एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया था किसी ने पहले? चलो, आई होप सबको समझ में आ रहा है। और यार समझ में तभी आएगा, एकदम मेरे साथ साथ बैठो, लर्न कर लो, सीरियसली बैठो। प्लीज़ कॉपी पेन लेके अटेंड करना लेक्चर, सिर्फ कहानी मत सुनना, कोई भी नहीं। ठीक है, चलो एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेन का कलर वाइट ही छोड़ देते हैं, वाइट क्लियर होगा आपको। एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, सिंपलेस्ट यूनिट हैं किसी सब्सटेंस के। मैंने बताया था कोई अगर अकेला बैठा है क्लास में तो वो एलिमेंट है। सिंपलेस्ट यूनिट, प्लीज़ इसको देखिए, ध्यान से देखिए। सिंपलेस्ट यूनिट, किसी भी सब्सटेंस का सबसे सिंपल यूनिट एलिमेंट कहलाता है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म्स। इसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। मुझे बताओ कि अगर तुम बेंच पे अकेले बैठे हो तो क्या तुम अब और टूट सकते हो? अब और अलग हो सकते हो? क्या आधे आधे बट सकते हो? नहीं ना, बताओ मुझे, हो सकता है क्या? अगर एक अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अपने ट्विन के साथ बैठे हो, तुम O2 हो, ट्विन के साथ बैठे हो, तो तुम लोग अलग अलग किए जा सकते हो। बताओ, ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला के बैठे हैं, तो इनको अलग किया जा सकता है। इनको मैं अलग, इसको मैं एक बेंच पे भेज दूँ, इसको मैं एक बेंच पे भेज दूँ, तो अलग तो तभी होंगे ना जब दो लोग होंगे। बताओ मुझे, अलग तो तुम लोग तभी होंगे जब दो लोग होंगे, है कि नहीं? जब एक ही बंदा है तो वो अलग कैसे होगा? तो ये सिंपलेस्ट यूनिट है बेटा, इनको और ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर फॉर्म्स में, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इससे सब कोई परिचित होगा, कार्बन से। ये ऑक्सीजन है, इससे सब कोई परिचित होगा। नाइट्रोजन, सिंपल। सोडियम, सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मेरे साथ जुड़े रहना, मैं अब समझा दूंगी। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज़ इस पर एक स्टार बना लो। कितने एलिमेंट है टोटल? 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें नोट करते जाओ। सिंपलेस्ट यूनिट है, इनको और ब्रोक नहीं कर सकते, और कितने हैं? 118। कर लिया, बढ़े आगे। चलो, ये है बेटा सुंदर सा आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हो सकता है नहीं पता है, यहाँ पे शायद कुछ लोगों को हो सकता है आपको नहीं पता हो। देखिए, पीरियोडिक टेबल होता है बेटा, ये जो 118 एलिमेंट्स आपने पढ़े थे,
अभी आपने पिछली स्लाइड में 118 एलिमेंट्स पढ़े थे। इनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने को कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल। अब मैं इसको जूम कर रही हूँ, दिख रहा है सबको? अब मैं सबको समझाऊंगी ये पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे अरेंज किया गया है। आपके मतलब का क्लास 8th के लेवल का जितना है उतना समझाऊंगी, ठीक है? देखो, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स अरेंज किए गए हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड अरेंज किए गए हैं, ठीक है? ये देखो, ये सारे आपके मेटल हैं, ये मेटल है। मैं इनको किस कलर से, ब्लू कलर से मार्क कर दूँ? ये देखो, ये पूरा, ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है, समझ आया? इधर इस साइड आपके मेटल्स होते हैं, ब्लू कलर के आपके मेटल्स हैं, ओके? इसको एक बार फिर से देख लेना क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है, ठीक है? और आपके ये हैं मेटलॉइड्स, ठीक है? एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ये मेटल हैं आपके, ये आपके नोबल गैसेस हो गए, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इनको। आपके नॉन मेटल, ये हो गए आपके नॉन मेटल्स, ठीक है? और अब मेटलॉइड देख लो बेटा, मेटलॉइड, एक सेकेंड, मैं किसी और कलर से कर दूं क्या? नॉन मेटल, दिक्कत हो रही है क्या समझने में? मैं किसी और कलर से कर देती हूँ, ओके, पिंक से कर दूं नॉन मेटल। ये देखो बेटा, ये आपके नॉन मेटल। हाँ बेटा, एल्युमिनियम भी आपका मेटल है, ओके? क्लियर हो एवरीवन? चलो देखो, इधर देखो, किस कलर से करी थी मैं? पिंक। ये देखो, ये सब आपके नॉन मेटल है। कौन है ये? नॉन मेटल है, पिंक वाले नॉन मेटल है, ठीक? अब देखो मेटलॉइड या सेमी मेटल्स आपके, ये बहुत कम होते हैं। देखो, ये वाला, ये सब, ठीक है? मेनली आपके हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जर्मेनियम, रुक जाओ, आई थिंक शायद क्लियर नहीं हो रहा है, रुक जाओ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक? ओके एवरीवन, आया समझ? ये आपके नॉन मेटल्स हो गए। ये ब्लू वाले क्या हैं? सॉरी, मेटलॉइड्स। ये सेमी मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स। शायद मैं लिख ना पाऊँ, लेकिन आप शायद ठीक है, सुन रहे हो, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? ये ब्लू वाले मेटलॉइड्स हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, ये पूरा लिखा नहीं पाया, मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स कहते हैं इनको, ठीक है? अब देखो, अब मैं एकदम आराम से समझा रही हूँ, एकदम आराम से सुनो, ठीक है? ये देख लिया सबने? ये देख लिया? ये बेटा लैंथेनॉइड सीरीज़ है, ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है, ये लैंथेनॉइड सीरीज़ है ये वाली, और ये वाली एक्टिनॉइड सीरीज़ है, आपके ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक? एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या? उप्स, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, ओ, कुछ मिस आउट हो गया है क्या मेरे से? हाँ, देखो बेटा, ये चीज़ ना यहाँ पे मैंने नहीं बताई आपको, एक बार देख लो इसको। ये जो मेटल है ना, इसमें 92 जो हैं मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। कितने मेटल्स हैं? 92। इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है? बाकी बचे आपके नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक? बाकी बचे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। 92 मेटल्स हैं, इसको लिख लेना, ओके?
चलो अब देखो कहाँ पहुँच गए थे हम। पीरियोडिक टेबल डिस्कस हो गया था, अब देखो मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। एकदम आराम से समझ लो, एक एक पॉइंट लिख लेना, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। देखो मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। कैसे होते हैं ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी देखने में बाहर से आपके मेटल्स कैसे होंगे, बाहर से आपको कैसे आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले मेटल्स देख लो। पहले अभी हम सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मेटल देखो, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं अपीयरेंस में। कैसे होते हैं बेटा, हार्ड शाइनी इन अपीयरेंस, ओके। ये सबकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन जनरल है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों की डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से समझना। हार्ड एंड शाइनी होते हैं आपके मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉट सो हार्ड, बेटा। ये मोस्टली गैशियस होते हैं, ठीक। डल अपीयरेंस होता है इनका। कैसा, ऑपोजिट जाओ इसके, हार्ड का ऑपोजिट क्या होगा, नॉट सो हार्ड, सॉफ्ट गैसेस। शाइनी का ऑपोजिट क्या है, डल अपीयरेंस होगा इनका, ठीक। आया समझ में सबको, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। डल अपीयरेंस होगा, ठीक। मेटलॉइड देखो बेटा बीच के होते हैं, मेटलॉइड्स ये बीच के होते हैं, ना पूरे मेटल होते हैं ना पूरे नॉन मेटल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी हो सकती है, नॉन मेटल की भी होती है, ठीक है। इनको हम सेमी मेटल भी कहते हैं। सेमी मतलब क्या, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सेमी मतलब आधा। नाम से सीखो, नाम पे जाओ, नाम को तोड़ो, ब्रेक करो, सीखो, ठीक है। आया समझ, अब सबको आ रहा है। मेटल आपको समझ में आ गया, हार्ड एंड शाइनी होंगे। नॉन मेटल जस्ट ऑपोजिट, नॉट सो हार्ड, मेनली गैशियस एंड हैव डल अपीयरेंस, ठीक है। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी कुछ मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है। आधे मेटल आधे मेटलॉइड होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, बीच के होते हैं, ठीक। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखा दिया था मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आप पहचान लोगे, नोबल गैसेस पहचान लोगे, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। नोबल गैसेस क्या होते हैं बेटा, नोबल मतलब क्या, ये नोबल है, नोबल सीधे साधे, नोबल सीधे साधे, ठीक। थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। नो का मतलब ये नहीं है, देखो जैसे आप लोग में होता है, जैसे इंसानों में होता है कि सीधे लोग भी कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, बताओ है कि नहीं सच। सीधे लोग भी कभी कभी रिएक्शन देते हैं, जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो वो लोग भी रिएक्शन देते हैं। वैसे ये लोग भी कभी कभी रिएक्शन देते हैं, दे आर इनर्ट। इस वर्ड को नोट करो बेटा, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। स्लाइड नंबर 2 में दिया था, आपके कॉन्सेप्ट मैप में दिया है। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये लोग कम रिएक्ट करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो मेटल का एग्जाम्पल देखो। चलो अब डिस्कस कर रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी दिखते कैसे हैं, ठीक है। आप देख के कैसे पहचान सकते हैं, दिखते हैं, दिखने में कैसे हैं, ठीक है। कैसे आपको दिख रहे हैं, कैसे दिखते हैं, देखिए आप कैसे पहचान सकते हैं। फिजिकल स्टेट अंडर नॉर्मल प्रेशर, जब तक कंडीशन नॉर्मल है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, स्टार बनाइए। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, और नहीं आर, फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन मत करना कि मैम आपने और लिखा था। एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बाकी सारे होते हैं सॉलिड। मैं बार बार बोल रही हूँ, बाकी सारे होते हैं सॉलिड। मरकरी क्या होता है, लिक्विड। मरकरी के दर्शन में भी करा देते हैं। मरकरी होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर मरकरी एक लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है। अभी मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो आप मरकरी को देखो, दिख रहा है मरकरी विजिबल,
क्लैरिटी है? देखो किस किस कलर का है, किस कलर का है? सिल्वरी ग्रे है, बोलो सिल्वरी ग्रे कलर का है। जेली लाइक है ना, जेली जैसा। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे इसके साथ खेलने वाले, लेकिन मैं आप सब जनों को बता दूं कि ये पॉइजनस होता है, इसके साथ खेलने का प्रयास ना करें। कोई भी इसके साथ खेलने का प्रयास नहीं करेगा, ये पॉइजनस होता है, जेली लाइक होता है। देखिए हाथ में ही नहीं आता है, ठीक, जेली की तरह होता है। किसी को ऐसा तो नहीं कि सॉलिड दिख रहा है, कोई सॉलिड लिख के आएगा एग्जाम में, सब लोग लिक्विड लिख के आएंगे, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको दिखा भी रही हूँ आपको विद फोटोज, कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक। सॉलिड इसकी बात हो गई, फिजिकल स्टेट की। कलर की बात करते हैं। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वरी ग्रे। गोल्ड और कॉपर को छोड़ के बाकी सारे मेटल देखो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। अभी मैंने मरकरी डिस्कस करते समय बताया है। कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, गोल्ड का कलर गोल्ड है, गोल्ड एंड येलो नहीं, गोल्ड एंड येलो, गोल्ड एंड येलो, ठीक। सबको पता है ना, सबने कॉपर और गोल्ड तो देखा है। अभी मैंने कॉपर और गोल्ड दिखाया भी था पीछे, ठीक। वैसे कोई इतना एलियन तो होगा नहीं, विचित्र प्राणी कोई ऐसा जिसने गोल्ड और कॉपर नहीं देखे होंगे, ठीक है। सबने ही घर में देखा होगा, सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं बाकी मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड इज ऑफ गोल्डन येलो कलर, कॉपर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक। क्लियर, सब समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है अभी तक? चलो आगे बढ़े जल्दी से। अपीयरेंस कैसा होता है? ऑल मेटल्स आर शाइनी, शाइनी। अभी पहली स्लाइड में मेटल के बारे में बताते समय बताया कि कैरेक्टरस्टाइन को कहते हैं लस्टर। सारे मेटल्स लस्टरस होते हैं, लस्टरस, ठीक। लस्टरस होते हैं मेटल। कैसे होते हैं? लस्टरस, चमकदार, चमकीले, चमकदार, ठीक है। Thus all metals have metallic luster. Metal can be easily polished. This property is used for making attractive jewelry. ज्वेलरी बनाने के लिए आप क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जो कि अट्रैक्टिव हो, ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जो कि चमकदार हो, जिसमें कि लस्टर हो, ठीक है। समझ में आया? पत्थर की ज्वेलरी इसीलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि पत्थर की ज्वेलरी में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। उसमें खास क्या है? कुछ खास है? कुछ खास नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर पहन के जाएंगे तो खास होते हैं ना हम। फिर समझ में आ रहा है सबको? तो ज्वेलरी आप सबको पता है कि शाइनी ही बनेगी और इसीलिए वो गोल्ड और सिल्वर की बनती है। अब कोई नहीं पूछेगा कि कॉपर की क्यों नहीं बनाते, कॉपर की नहीं। ज्वेलरी का एक और गुण है कि वो प्रीशियस होनी चाहिए। ज्वेलरी का एक और गुण है कि वो प्रीशियस होनी चाहिए, महंगी, कीमती होनी चाहिए, और वो कॉपर नहीं होता है, ठीक, ठीक है। चलो ये फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट मैंने डाल रखा है, इसको प्लीज़ दिमाग में रखना। इट्स सिल्वर, चांदी के बारे में बोल रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 90% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो मोस्टली लाइट इस पर आती है 90% ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वही वापस भेज देता है, इससे टकराकर वापस चली जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है, ये वापस भेज देता है 90% लाइट को। अर्लियर सिल्वर वॉज यूज इन मेकिंग मिरर्स। पुराने समय में सिल्वर को मिरर्स में यूज़ करते थे, ठीक है। जो राजा रानियों का मिरर वगैरह होता था जिसमें डिज़ाइनिंग होती थी वो सारी सिल्वर की होती थी, जिससे कि वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करे। मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो अच्छी से छवि मिरर में दिखाई देगी। कोई नहीं पूछेगा कि अभी के मिरर में क्यों नहीं होता। सिल्वर इज़ प्रीशियस, ठीक है, इसीलिए सिल्वर आज मिरर में यूज़ नहीं होता, पहले हुआ करता था पुराने ज़माने में। हार्डनेस की बात करी जाए तो ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। देखो बेटा, इस चैप्टर में एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन हर जगह है। तो जो बच्चा नोट नहीं करेगा, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा एक्सेप्शन की तरफ, वो एग्ज़ाम में मात खा जाएगा। इसलिए मैं अंडरलाइन कर करके बार बार बता रही हूँ, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, देखो इस तरह के नोट्स आपको कई जगह पे मिल जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई इस तरह समझाएगा नहीं, एक एक पॉइंट कोई नहीं समझाने वाला आपको। मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, नोट करना इसको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बिना नोट किए कथा सुनने मत बैठ जाना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं, कैन बी इजली कट विद अ नाइफ। एक चाकू से भी आप उसे काट सकते हैं, एक चाकू से भी, एक नॉर्मल चाकू से, फल काटने वाले चाकू से भी आप सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है मैंने आगे फ़ोटोज़ ऐड करी हूँ तो वो जब आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ऑस्मियम जो होता है
देखो बेटा, एक मेटल होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम इतना हार्ड होता है कि वो ग्लास को भी स्क्रैच कर सकता है, ऑस्मियम इज सो हार्ड दैट इट कैन स्क्रैच अ ग्लास इवन। आ गया समझ में, क्लैरिटी मिली। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि उनको फल वाले किसी भी आप नॉर्मल चाकू से काट सकते हैं, और ऑस्मियम इतना हार्ड है कि वो ग्लास को भी स्क्रैच कर सकता है। क्लैरिटी हो गई। चलो बढ़ें, इसको मैं थोड़ा सा पहले क्लीन करूं और उसके बाद थोड़ा सा इस पिक को मैं छोटा, देखो गोल्ड, देखो मैंने हर जगह फ़ोटो ऐड करी है, इससे आपको क्लैरिटी होगी। गोल्ड हार्डनेस आपको समझ में आ रही है, गोल्ड कॉइन हार्ड होते हैं इसलिए वो कॉइन बनाए गए हैं। लस्ट्रस है, शाइन है, आपको सारे कैरेक्टर समझ में आ रहे होंगे। सिल्वर, मरकरी, कॉपर, देखो किस कलर का है बेटा, किस कलर का है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है, ऐसा ही है कॉपर। याद रखोगे सब लोग, अब सब लोग याद रखिएगा ना। चलो देखो, अब देखो एल्युमिनियम, देखो आयरन, देखो सारे मेटल्स हैं, देख लिए सबने। अब मैं इस पिक को हटा दे रही हूँ, हटा दूँ ना, चलो हटा देते हैं, बहुत बड़ी पिक थी, सब डिस्कस कर लिया, अब हटा देते हैं। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, आपकी स्ट्रेस झेलने की शक्ति, आप कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है मेटल के पास जो होती है ना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मेटल के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसका, आयरन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलने की आदत होती है, आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, इसीलिए उसको कंस्ट्रक्शन में बेटा, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, इसमें यूज़ किया जाता है। खुद ही सोचो बेटा, क्या सोडियम के ऊपर हम रेलवे ट्रैक बना सकते हैं? क्या सोडियम से, जो कि इतना सॉफ्ट है कि उसको फल वाले चाकू से काटा जा सकता है बेटा, क्या हम उससे रेलवे ट्रैक बना सकते हैं? बताइए, क्या हम ऐसे मेटल से रेलवे ट्रैक बना सकते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हो? क्या हम ऐसे मेटल से कोई ब्रिज बना सकते हैं या कोई बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं। मेटल की बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। आयरन से मैं इसीलिए बनाती हूँ, आयरन से मैं इसीलिए ब्रिज बनाती हूँ क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, स्ट्रेस झेलने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसी चीज़ को बोला जाता है बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ आया टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब? चलो आगे बढ़ो। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी, देखो मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप मेटल को पीट के शीट बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। सबने एल्युमिनियम फॉयल देखा है, सबके घर में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल सबने देखा है कि नहीं देखा है, जल्दी बताओ मुझे। एल्युमिनियम क्या है? अभी हमने पिक्चर में देखा था, एल्युमिनियम क्या है? इज अ मेटल। एल्युमिनियम क्या है बताओ? मेटल है, मेटल क्या है? मेटल। ये मेलिएबल होते हैं, इनको थिन शीट्स में आप ड्रॉ कर सकते हैं, पीट के आप इनको थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी हैमर्ड, यानी पीट कर इनटू वेरी थिन शीट्स। सिल्वर कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन लीव्स। सिल्वर वर्क वाली मिठाई खाइए, सिल्वर वर्क ऑन बर्फी एंड स्वीट्स, लड्डू, बर्फी, इन सब पर आपके सिल्वर और गोल्ड के वर्क होते हैं, ठीक है। चांदी और सोने के वर्क हुआ करते हैं आपकी बर्फियों में, आपके मिठाइयों में, ठीक है। वो सब क्यों हो पाते हैं बेटा? सोचो, सिल्वर को इतने पतले वर्क में मार के पीट दिया गया कि उसको आप ऐसे छू दोगे तो वो झड़ जाता है कि नहीं बताओ? उसको थोड़ा सा हार्ड प्रेस कर दो, वो झड़ जाएगा, झड़ना शुरू हो जाएगा। फूड मटेरियल की पैकिंग में यूज़ होता है एल्युमिनियम फॉयल, इसमें किसी को शक नहीं है ना। लंच सब लोग ले जाते हैं, देखा सबने हुआ है। एल्युमिनियम फॉयल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एल्युमिनियम को हमने बीट कर करके, हैमर कर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप गोल्ड और सिल्वर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चांदी का ये जो वर्क होता है, जो सोने का वर्क होता है, वो मिठाइयों पे आप सबने देखा होगा, आप सबने खाया ही होगा, ठीक। देखो बेटा, साइंस जो ऐसी चीज़ है ना, सिल्वर का वर्क होता है, गोल्ड का भी हो सकता है। देखो, साइंस ऐसी चीज़ है ना जो आप हर समय हर चीज़ देखते हो, अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो, और जो बच्चा ऑब्जर्व नहीं करेगा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब मिठाई सबने खाई है, सिल्वर वर्क किसको किसको ध्यान है? चांदी सोने की वर्क वाली मिठाई सबने खाई होगी, किसको वो चीज़ ध्यान आएगी और वो कनेक्ट कर पाएगा, वही सीख पाएगा,
ठीक है, इसीलिए मैं फ़ोटोज़ ऐड कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए हम फ़ोटोज़ ऐड करते हैं ताकि आपके विजुअल कॉर्टेक्स को सिमुलेट कर सकें, ताकि आपको याद रह सके कि मैंने ये वाली पिक्चर देखी थी। ठीक, चलो अब डक्टिलिटी देखो बेटा। डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। इन मेटल्स को हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इन वायर की हम पतली 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 तार बना सकते हैं, तार। ठीक है, सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की तार। कॉपर की तार आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। सारा आपका जितना वायरिंग है कॉपर की तार का होता है। कॉपर की तार की वायरिंग होती है, देखा है ना सबने? तो गोल्ड और सिल्वर के तार बनाए जा सकते हैं। हीट पीट के उनको बहुत ही पतले थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। कान खोल के, दिमाग खोल के एक एक पॉइंट लिखो, समझो। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर, देखो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, बहुत समझ लेना अच्छे से। सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब तुम पूछोगे कि तो आप ये बताइए कि फिर हम लोग सिल्वर को वायरिंग में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर को वायरिंग में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? कोई बता सकता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जल्दी। चलो मैं वेट कर रही हूँ, बताओ सिल्वर को हम क्यों नहीं वायरिंग में यूज़ करते हैं? सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है बेटा। अगले दिन ना चोर आएगा और सारा का सारा वायरिंग उठा के ले जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सिल्वर एक और चीज़ होता है, सिल्वर प्रीशियस होता है, सिल्वर महंगा होता है, इसीलिए हम लोग उसकी जगह कॉपर को यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर सेकंड नंबर पे आता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। सिल्वर को नहीं यूज़ कर सकते। कोई इतना अडानी अंबानी तो है नहीं, है ना, कि घर में सिल्वर की वायरिंग कराएगा। बोलो सच है? चलो, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। देखो बेटा, कॉपर को यूज़ करा, एल्युमिनियम को यूज़ करा, गोल्ड और सिल्वर को तो यूज़ नहीं करेंगे, है ना। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर ऑल्सो मेड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ना तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट का भी बेटा बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक बात समझ लो जो किसी भी बुक में नहीं लिखी है, मैं आपको बता रही हूँ। एल्यूमिनियम के जो आपके वेसल्स होते हैं ना, बर्तन, इसमें खाना नहीं खाना चाहिए। एल्युमिनियम के वेसल्स में खाना नहीं खाना चाहिए। वाई? बिकॉज जब आप उसको हीट करते हैं बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एल्युमिनियम जो है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना मुझे ना आपको। लेकिन एक और चीज़ है बेटा, एल्युमिनियम को जब हीट करते हैं ना तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स बनते हैं। एल्युमिनियम का क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं, जो कि बेटा हार्मफुल होते हैं। दे आर अ सॉर्ट ऑफ स्लो पॉइजन फॉर ह्यूमन्स। ठीक है, वो आपके खाने के लिए नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन आपके खाने के लिए नहीं बने हैं बेटा। भले ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन जो भी गुड कंडक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बर्तन बना के उसमें खाना बनाने लगेंगे। ठीक, तो एल्युमिनियम आपके खाने के लिए अच्छा नहीं है। यू कैन यूज़ स्टील वेसल्स, स्टील यूटेंसिल्स का यूज़ करें। ठीक है, एल्युमिनियम का यूज़ ना करें। एल्युमिनियम जब हीट होता है तो ऑक्साइड बनाता है, वो आपके काम का चीज़ नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ओके, क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? चले नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी पे चले। देखो, मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटीज़। मैंने बताया था सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी मतलब बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, गाढ़ापन। मतलब कोई चीज़ बहुत थिक होना। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत आराम से आप उनको काट सकते हैं, बहुत आराम से आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, चलो बेटा, मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं। 10th प्रॉपर्टी पे आ गए हम, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरस होते हैं। जब इनको स्ट्रक किया जाए ना हार्ड, घंटी मेटल की क्यों बनी रहती है? मंदिर की घंटी देख लो, ये सब मेटल की क्यों बनी रहती है? क्योंकि जब आप इनको स्ट्रक करते हैं, जब आप किसी चीज़ से जोर से बजाते हैं इसको, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रिंगिंग साउंड। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इनको बेल बनाने में और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वायर बनाने में यूज़ करते हैं। बेल और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के वायर बनाने में यूज़ होते हैं। समझ में आई बात? सबको समझ में?
और इस प्रॉपर्टी को बेटा, और ये भी चीज़ कहीं लिखी है, देखो इसको, इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ और मेटल्स इसमें मिला देते हैं। अलॉयज़ और अच्छा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल से भी अच्छा रिंगिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? अलॉयज़। ठीक, अलॉयज़ क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होते हैं। ठीक, अब ये मैं अलॉयज़ अब बाद में डिस्कस करूँगी। ये समझ में आ गया? प्रॉपर्टी, सोनोरिटी आ गया सबको समझ में? चलो, फिनिश हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हाँ, फाइनली आ गया सबको समझ में। बढ़े आगे, कहो तो बढ़े। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बहुत ईजी है बेटा, इसकी जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेटल्स। अगर आपको मेटल समझ में आया तो नॉन मेटल तो बच्चों का खेल है, आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक, चलो जल्दी जल्दी फिर कवर करते हैं, आ जाओ। फिजिकल स्टेट नॉन मेटल में अगर है सॉलिड, दिस कैन बी सॉलिड, जैसे कि कार्बन होता है बेटा। लिक्विड, जैसे कि ब्रोमीन होता है। ठीक है, और गैसेस, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सब सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस होते हैं। इसको देख लेना बेटा, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सब सॉलिड होते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। ब्राउन कलर का याद है जिसका मैंने पिक स्टार्टिंग में लगा दिया था? ब्राउन कलर वाला भी मैं पिक दिखा देती हूँ आपको। ठीक, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे गैसेस होते हैं। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिक्स नहीं है कुछ। ठीक है, सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट कलर का होता है, या रेड कलर का भी हो सकता है, वाइट और रेड फॉस्फोरस होता है बेटा। क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब के कलर, ये सब जो आपके एयर में प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? कलरलेस। ठीक, हवा का रंग वंग दिखता है क्या किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का रंग दिखने लगे हैं? कोई तो ऐसा नहीं है ना? याद रहेगा, ये सारे तीनों कलरलेस होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे कलरलेस है बेटा। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, फॉस्फोरस वाइट या रेड कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है। सबके दर्शन हो जाएंगे, आराम से देखते रहो। अपीयरेंस, डन नहीं, डल अपीयरेंस, इनका अपीयरेंस डल होता है। दे डू नॉट शाइन, स्टार्टिंग में ही देखा था। ग्रेफाइट बेटा, देखो एक्सेप्शन आ रहे हैं, एक्सेप्शन लिखिए। ग्रेफाइट, आयोडीन, ये सारे शाइनी होते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन शाइनी है बेटा, लिख लेना। ठीक है, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में होता है, ओके, लिख लेना इसको। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ना मेलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल होंगे, ना ही मेलिएबल ना ही डक्टाइल। ठीक, ओके, ये ब्रिटल होते हैं। इसका ऑपोजिट, मेलिएबल और डक्टाइल का ऑपोजिट वर्ड याद कर लो, ब्रिटल होते हैं। दे ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन दे आर हार्ड और हैमर्ड। जब इनको ज़ोर से दबाओगे या हथौड़े मार के इनको पतला शीट करने की कोशिश करोगे, नहीं होंगे, पीसेस में टूट जाएंगे। ब्रिटल, ये पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है बेटा, मेटल के साथ कनेक्ट करके नॉन मेटल को याद करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी रही फ़ोटोज़ की बात, मैं दिखा दूँगी। ठीक है, देखो डेंसिटी, देखो इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं। मेटल की डेंसिटी हार्ड होती थी और वो हाई डेंसिटीज़ के होते थे। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं। डायमंड, किसी ने शायद, जब मैं ज्वेलरी की बात करती तो डायमंड देखो, ये बेटा नॉन मेटल है। डायमंड आपका नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है नोन, दुनिया का, पूरे अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये सबसे हार्ड है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम होती है, लो, एंड दे कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली। अभी मैंने बताया, हथौड़ा मारोगे, इसको मारो, टूट जाएगा। ठीक है, शीट नहीं बनने वाली इसकी, टूट जाएगा ये, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, इस पर कुछ भी झेलने की क्षमता नहीं है। देखो बच्चों, आ गई फ़ोटो।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लो बेटा। शायद मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल में नहीं था क्या, डिस्कस नहीं किया है क्या, छूट गया है क्या? जल्दी बता दो, बता दो, बता दो। ओह आई गेस लीव हो गया। चलो कुछ नहीं होता, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, मैं इधर ही बता दे रही हूँ, ठीक है, इधर आओ। चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा, ये जो नॉन मेटल होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। एकदम ध्यान से समझ लो, लिखते जाओ प्लीज़। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सबके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई हाई हाई, MP BP दोनों हाई, मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों हाई, ठीक। मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों हाई, नॉन मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग लो, लेकिन ग्रेफाइट अलग है, ग्रेफाइट का हाई होगा, ठीक है बेटा, ग्रेफाइट अलग है ग्रेफाइट का, जबकि वो नॉन मेटल है, इसके बावजूद उसका मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होगा। ये लोग सोनोरस नहीं होते हैं, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखो फोटो के दर्शन कर लीजिए, इससे कनेक्ट करके सब कुछ समझ लीजिए। मैंने कार्बन बताया था, मैंने 1 मिनट और जूम कर दूं, ये देखो नॉन मेटल बता रही हूँ बेटा, नॉन मेटल। देखो कार्बन बताया था किस कलर का है, कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, जो आपको याद नहीं हो रहा प्लीज़ कॉपी में लिखते जाइए, फंस जाएंगे आप, ठीक है, कॉपी में लिखते जाइए। नेक्स्ट, इसको हटा दूं, ये कर्सर देखो यार, क्या लिखना, सल्फर आपको दिख रहा है, ये सल्फर है, सल्फर, ये सल्फर है, पीला 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 रसीला आम है ना, तो ये आम नहीं है, ये सल्फर है, पत्थर जैसा टूटा टूटा दिख रहा है आपको, सल्फर, सल्फर, सल्फर मैंने बताया था येलो कलर का होता है, याद है, अभी पीछे ही डिस्कस किया है। फॉस्फोरस रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है बच्चों, रेड वाइट दोनों हो सकता है। रेड वाले की फ़ोटो है, रेड फॉस्फोरस की फ़ोटो दिखाई दी, चूरा चूरा बना हुआ है, दिख रहा है सबको, चलो 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 चलो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस फोटो को छोटा करें वापस से और इसको यहाँ बड़ा करते हैं। देखो दर्शन करो, ब्रोमीन मैंने एक ऐड कर दिया था स्टार्टिंग में, मेटल वाले में गलती से, देखो सल्फर देखो फिर से इसमें है, ब्रोमीन देखिए किस कलर का है बेटा, किस कलर का है, रेड ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, बोलो दिख रहा है ब्रोमीन, ये बीकर में पड़ा हुआ, देखिए, चलें बढ़े, देखो देखो एक बार देखो, एक बार देखो, एक बार देखो, इसको भी देख लो, 1 सेकेंड, 1 मिनट, देखो कार्बन दिख गया, ऑक्सीजन दिख गया, गैस है, ऑक्सीजन दिख गया, क्लोरीन बेटा ग्रीनिश कलर का होता है, क्लोरीन के बारे में जो पूछ रहा है, ग्रीनिश, ग्रीनिश नहीं मिला था मुझे क्लोरीन का फ़ोटो, ठीक है, एनीवेज मैंने आपको बता दिया ग्रीनिश कलर का होता है, ओके। देखो बेटा अब पूरे लेक्चर की समरी है ये चार्ट, ये चार्ट एकदम दिमाग में बसा लो एकदम, ठीक है। देखो मैं पूरा ये डिस्कस कर रही हूँ, छोटी सी चार्ट में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन लेक्चर को स्किप करके चार्ट मत देखना, समझ गए। ये नहीं कि लेक्चर को स्किप करें और चार्ट देखने बैठ गए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना आपका, उससे भला नहीं होना। देखो प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट देखो बेटा, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी सॉलिड होते हैं, ठीक, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आपके, मेरा कर्सर देखो, ये ज़्यादा अच्छे से दिखेगा क्या, ठीक, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, क्लियर। अपीयरेंस, कलर, लस्टर कैसा होगा, ज़्यादातर मेटल सिल्वरी ग्रे होते हैं, अभी डिस्कस किया, गोल्ड गोल्डन येलो, कॉपर रेडिश ब्राउन होगा, इनके पास मेटालिक लस्टर या शाइन होती है, ठीक, इनके डिफरेंट कलर्स होंगे, आपके साथ कुछ कलर्स और फोटोज़ डिस्कस किए गए हैं, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हार्डनेस जो है, सारे मेटल, सोडियम पोटाशियम को छोड़ के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, बोलते बोलते मेरा गला ही बैठ गया है। एनीवेज सुन रहे हो सब लोग, तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में मैं डिस्कस करी थी कि इतने सॉफ्ट हैं कि इनको नाइफ से काट सकते हो। सॉलिड नॉन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, ये सारे मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, हथौड़ा मारने पे टूट जाते हैं।
डक्टिलिटी, इनको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, इनके वायर नहीं बना सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, ये सारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट को छोड़ के ये सारे पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर, सुनो, पुअर कंडक्टर इंसुलेटर, इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट बागी है, गद्दार। ग्रेफाइट ने अपने ग्रुप से गद्दारी की है, ठीक है। ग्रेफाइट ने क्या की है? गद्दारी। इस बात को याद रखना। ग्रेफाइट सबसे अलग है बेटा, ये देखो ग्रेफाइट तुम्हारा सबसे, अब दिखेगा ग्रेफाइट सबसे अलग। यहाँ भी एक्सेप्शन, यहाँ भी एक्सेप्शन। डायमंड अलग एक्सेप्शन है। ये सब गद्दार हैं, अपने ग्रुप से गद्दारी करने वाले। याद रखोगे ना इनको? बताओ, याद रखेंगे सब लोग? चलो। So everyone, I hope you enjoyed the lecture, and if you do like my content, please do not hesitate to like, share and subscribe, because I also need energy and motivation to work. So hope to see you next time. Take care. Bye bye.